Done. Done. Good afternoon, dear participants. Welcome to the FTP program we are organizing since last few days. Today's speaker is Dr. Deepa Saxena ma'am. She has guided more than 40 students in MPhil, and she is regularly guiding so many research scholars in preparing their PhD thesis. I would like to give her small introduction. Dr. Deepa Saxena is an academician whose career blends the art of teaching with the rigor of research. Her journey of learning began with the Central Board of Secondary Education, New Delhi, where she completed her schooling. A strong curiosity for knowledge led her to pursue a Bachelor of Science from Rani Durgavati University, Jabalpur, in 1999. Soon, she discovered her true calling in the world of business and management, completing her Master of Business Administration, that is MBA from Guru Ghasidas University, Bilaspur, in 2001. She earned her Doctor of Philosophy, that is PhD in Management from Avdesh Pratap Singh University, Riva, in December 2011. Since 2007, Dr. Saxena has been associated with the Department of Business Administration at Avdesh Pratap Singh University as a guest faculty. With over 9 years of teaching experience, she has played a pivotal role in shaping young minds in the field of management while also contributing meaningful to research publication and academic guidance. She also helped lot of research scholar in our department who comes with a question mark with their minds, and she guides with full of courage and guide them with vital and without biasness to all the students. Over to you, Dr. Deepa Saxena ma'am. I welcome Dr. Deepa Saxena as a resource person today, and she is a senior faculty of this department. She has been associated with this department for last 17 years, and we highly appreciate her inclination towards teaching and research. As Dr. Isha has just told, she is regularly guiding the students of PhD program in completing their research work, and her qualifications and abilities match to the qualification and abilities of professors in the university system. We welcome her as a resource person to take the basics of research methodology and its different aspects through SPSS software. I welcome Dr. Deepa Saxena as a resource person again, though she is a member of our faculty, but today I welcome her as a resource person on the behalf of all the participants. Thank you. Ma'am, your voice is not audible. Deepa, ma'am, we can't hear you. Thank you so much, Isha, and respected Atul sir. I am very thankful to you for giving me the opportunity to give some basics, yet, however, important insights which the faculties and research scholars generally need to know. I will try my best to explain important concepts as much as I know.
I welcome all the participants once again to the session. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank you. So here is the first slide. So these are the key concepts in research methodology and statistical analysis, which all the researchers need to know at the basic. First, we should know about the dependent and independent variables. First, what are the dependent variables and independent variables? You should know. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की डेफिनेशन जो है वैसे तो बहुत सारी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी आपको लग सकती है. फिलहाल जो रिसर्च में यूज होती है वो सबसे ज्यादा है कि डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जो है हमारे क्वेश्चनियर में वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, या फिर जैसे एज है, जेंडर है, इनकम है, ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं और ये चेंज नहीं होती है. इनके बेसिस पे आपका बिहेवियर या एटीट्यूड वो चेंज होता है, इसलिए इन्हें हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पे जो वेरिएबल्स चेंज होते हैं, जैसे कि इसमें जो ब्लू से हाईलाइटेड है, एटीट्यूड ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, जॉब सेटिस्फेक्शन, परसेप्शन एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है वो सारी डिपेंडेंट वेरिएबल्स है. तो इसमें लाइक आउटकम है, इफेक्ट है, रिस्पॉन्स वेरिएबल है. जनरली हम एटीट्यूड या रिस्पोंडेंट्स जो है वो एज, जेंडर या इनकम के बेसिस पे जब भी उसको टेस्ट करते हैं तब हम ये समझते हैं कि ये जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट है, और जो दूसरे वेरिएबल्स है लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन, परसेप्शन या एटीट्यूड, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. सो जैसे इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है, इफेक्ट ऑफ स्टडी आवर्स ऑन एग्जाम स्कोर्स. आप कितना देर पढ़ते हैं और उसका आपके एग्जाम स्कोर्स पर क्या असर पड़ता है. अगर ऐसा है कि स्टडी आवर्स ज्यादा देर तक आप पढ़ते हैं और आपके जो मार्क्स है उसी हिसाब से ज्यादा भी आते हैं, तब तो ये ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. अदरवाइज अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं और मार्क्स आपके कम आते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे, बहुत बार नेगेटिव भी हो सकता है. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है यूनिवेरिएट वर्सेस बाईवेरिएट डेटा. हम जब कभी भी रिसर्च रिपोर्ट में ग्राफ बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है कि यूनिवेरिएट डेटा और बाईवेरिएट डेटा ये दोनों क्या चीजें हैं. यूनिवेरिएट में होता है जैसे हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, या एज ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, ये सिर्फ एक डेटा है और इसको टेस्ट करने के लिए हम जनरली फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसी चीजों का यूज करते हैं, उसे हम यूनिवेरिएट डेटा कहते हैं. बाईवेरिएट डेटा जो है वो है डेटा इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स लाइक हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स. और जनरली यूनिवेरिएट डेटा में जब हम कभी बात करें तो इसमें जो ग्राफ बनते हैं वो पाई चार्ट्स बनते हैं, और बाईवेरिएट जो डेटा होता है उसमें जो ग्राफ होते हैं बार चार्ट बनते हैं, लाइन चार्ट बनते हैं, इस तरह से बनते हैं. तो यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट डेटा ये भी जानने की जरूरत है. और सबसे बड़ी बात, एसपीएसएस में डेटा एंट्री कोडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के अभी 2-4 दिन बाद शायद आपका आर सॉफ्टवेयर है उस पर भी आपकी वर्कशॉप होनी है. तो जो आर सॉफ्टवेयर है उसको जानने के लिए ज्यादा जरूरी है, उसमें इंपोर्ट करनी पड़ती है शीट तब आप इंपोर्ट कर सकते हैं जब आपने एंट्री एसपीएसएस में सही ढंग से की हो, आपको पता हो कि उसे क्या कहते हैं, कौन सा डेटा कैसे एंट्री की जाती है, इसलिए आपको जानना भी जरूरी है. दूसरा, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देन नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव स्केल. फॉर्मेटिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव स्केल की अगर आप डेफिनेशन ऐसा देखने जाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी. मैंने बस ये ट्राई किया हुआ है कि आपको जो भी चीजें हैं बहुत ही लेमैन टर्म्स में आपको बताई जा सके. फॉर्मेटिव स्केल क्या होती है? द कंस्ट्रक्ट इज बिल्ड बाय इट्स आइटम्स. अब इसको देखकर आप नहीं समझ सकते हैं कि इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कोई भी रिसर्च इसमें क्या कहना चाहता है. सिर्फ एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें वेल्थ इज फॉर्म्ड बाय इनकम, प्रॉपर्टी एंड सेविंग्स. इससे भी आप रिसर्चर्स इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चनियर में जो क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे हम जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी कितनी इनकम है,
या जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू शॉप ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कितना खरीदते हैं। अगर वो सीधे सीधे कह देते हैं डेली, वीकली, मंथली, ओकेजनली, रेयरली, तब तो ठीक है। और अगर उन्होंने, हो सकता है मुझे ऐसा लगे कि हो सकता है ये जो क्वेश्चन है जो बोल रहे हैं ओकेजनली खरीदता हूँ या मैं खरीदता ही नहीं हूँ, कभी नहीं खरीदता हूँ, डेली खरीदता हूँ, मुझे हो सकता है वो एग्जैगरेट कर रहा है। मैं उससे उसकी कुछ हैबिट्स को देखना चाहती हूँ, कुछ क्वेश्चंस के, कुछ स्टेटमेंट के माध्यम से, कि वो सही बोल रहा है या नहीं। तो ये फॉर्मेटिव स्केल है। रिफ्लेक्टिव स्केल, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से पूछ सकती हूँ। ये, आई फ्रीक्वेंटली फाइंड माई सेल्फ browsing online shopping website. I often purchase products online without much planning. I regularly depend on online shopping for my needs. इसका मतलब है कि यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता था। इसको हम फिर लिकर्ट स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे लिकर्ट स्केल क्या होता है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव स्केल है। रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस, इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल सकता है, लेकिन इजी टर्म्स में आपका यही है कि ये फॉर्मेटिव स्केल है। जब हम जनरल क्वेश्चन पूछते हैं और उसी क्वेश्चन को जब हम एसपीएसएस रिकर्ट स्केल के फॉर्म में पूछते हैं, तब उसको हम रिफ्लेक्टिव स्केल। देन टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी जब हम एसपीएसएस के थ्रू भी हम कुछ चीजें अभी आगे देखने वाले हैं, तब और आपको क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ टेस्ट में हम जनरली पढ़ेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसमें भी आप बहुत सारी चीजें हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट की डेफिनेशन है, ये देखिए बहुत सारा है, काफी सारा। इसमें एजम्पशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, इंटरवल और रेशियो बेस्ड ऑन मीन, सैंपल साइज कितना होना चाहिए। पैरामेट्रिक में जो सैंपल साइज है वो मोर देन 50 होना चाहिए। सारे जो टेस्ट है, टी टेस्ट, एनोवा, जेड टेस्ट, ये लार्ज सैंपल साइज के लिए होते हैं, और जनरली मोर देन 50 सैंपल साइज अगर हो तो वहां पे पैरामेट्रिक टेस्ट लगता है, और जहां पर भी 50 से कम सैंपल साइज होता है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगता है। पीएचडी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको जनरली हम पैरामेट्रिक टेस्ट ही यूज करते हैं, या हम रिसर्च पेपर बना रहे हो, कुछ ऐसा छोटा रिसर्च स्टडी कर रहे हो, उसके लिए हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अलाउ कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल है टी टेस्ट, एनोवा, जेड टेस्ट, और मैन विटनी यू टेस्ट, क्रस्कल वॉलिस टेस्ट, ये सब चीजें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आती है। काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो पैरामेट्रिक भी है और नॉन पैरामेट्रिक भी है, और एक्चुअली जिसका सबसे सिंपल मीनिंग है जो रिसर्चर्स अपने माइंड में हमेशा बिठा सकते हैं, वो ये है कि पैरामेट्रिक टेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो मीन के बेसिस पे होता है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का जो कैलकुलेशन है उसमें मीन नहीं निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम पूछे कि हाउ मेनी बॉयज like to study in Riva and how many of them like to study in Jabalpur or any other country or any other nation or any other state। अब उसमें डेटा मीन में नहीं, मतलब उसमें पॉइंट्स में नहीं हो सकता है। मतलब जबलपुर मीन्स जबलपुर, रीवा मीन्स रीवा, और भोपाल मीन्स भोपाल, पुणे मीन्स पुणे। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि भोपाल पुणे बन जाएगा, या उसका कुछ भी डेटा मिक्स नहीं हो सकता है। मीन निकालना पड़ता है पैरामेट्रिक के लिए, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए मीडियन या रैंक्स निकालने पड़ते हैं। और काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा है जो कि मीन पे भी लग जाता है और नॉन पैरामेट्रिक मीन पे भी काम करता है और मीडियन और रैंक्स पे भी काम करता है। तो ये पैरामेट्रिक है। अब इसमें पैरामेट्रिक का है प्रिसाइज बट प्रिस्क्रिप्टिव, नॉन पैरामेट्रिक है नो प्रिस्क्रिप्शन, फ्लेक्सिबल एंड फ्यूअर एजम्पशन। जनरली हमें पैरामेट्रिक टेस्ट ज्यादा यूज करने हैं। जो रिसर्चर्स है, फैकल्टी एफडीपी है, तो फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट ही हमारे काम आने वाला है। अब जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसकी भी बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें हैं, पर जनरली 5% आपको ये रिस्क रहती है, छूट रहती है कि आप थोड़ी गलती कर सकते हैं। 95% आप सही हो सकते हैं, 5% आप गलत, आपका रिजल्ट हो सकता है। द रिस्क वी टेक ऑफ बीइंग रॉन्ग। डिग्री ऑफ फ्रीडम है हाउ मच डेटा वी हैव टू वर्क विथ, मतलब हम कितने डेटा पर काम कर सकते हैं, और उसमें से अगर एक रिस्पोंडेंट कम भी हो गया तो हो सकता है उससे उसका जो हमारे रिजल्ट्स पे कोई बहुत ज्यादा असर ना पड़े। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, इसको मैं एसपीएसएस के थ्रू भी कुछ बताना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए एसपीएसएस में किस तरह से इसकी एंट्री हुई है। देखिए ये एसपीएसएस की एक सैंपल शीट है और एक क्वेश्चनियर भी है मेरे पास। ये क्वेश्चनियर है, सैंपल क्वेश्चनियर है। इस तरह से क्वेश्चनियर में है मतलब आई एम अ रिसर्च स्कॉलर इन द इंस्टीट्यूट नेम, आपको इस तरह से लिखना है टॉप में।
और टॉपिक इसमें जो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है उसका टॉपिक है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग एज अ। बाकी चीजें सब लिखी हुई है, पहले से इंट्रोड्यूस करना है आपको अपना क्वेश्चनियर रिस्पोंडेंट्स के लिए, उसका ये हेडिंग है, उसका कवरिंग लेटर है। नेक्स्ट इसमें जैसे सेक्शन ए, जो पूरी क्वेश्चनियर है वो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, फिर सेक्शन बी है, और सेक्शन डी में काफी सारे फैक्टर्स हैं। इसके बाद इसमें है डेमोग्राफिक डिटेल्स, तो ये सेक्शन ई हो सकता था, इसको हम सेक्शन ई भी मान सकते हैं। तो इसमें देखिए डेमोग्राफिक डिटेल्स में विच एज ग्रुप डू यू बिलोंग टू, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। चाहे तो हम क्वेश्चनर के स्टार्टिंग में ही पूछ सकते हैं, जब हम कवरिंग लेटर के जस्ट नीचे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर्मेट पे डिपेंड करता है आपको क्या फॉर्मेट पसंद है, आपकी गाइड क्या कहते हैं। फिर इस तरह से हमने पूछा हुआ है, जेंडर वाइज क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज योर करंट ऑक्यूपेशन, आप क्या है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है। इस तरह से हमारी काफी सारी कैटेगरीज है। मैरिटल स्टेटस के लिए भी है, मैरिड अनमैरिड, इनकम रेंज के लिए भी ये सभी रेंजेस लिखी हुई है यहाँ पे। ये क्वेश्चनर में हो सकता है कुछ गलतियां भी हो इसमें आगे। ये अभी सेक्शन ए में है ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स। अब ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिव स्केल पहले लिख दिया था कि फॉर्मेटिव स्केल के क्वेश्चंस है सेक्शन ए में। हाउ ऑफन डू यू शॉप ऑनलाइन, ये एक क्वेश्चन है, और ये मैंने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, कोडिंग है एक्चुअली। जब हम इसको एसपीएसएस में एंट्री करेंगे, डेली 1 मींस डेली, 2 मींस वीकली, 3 मींस मंथली, 4 मींस ओकेजनली एंड 5 मींस रेयरली। देन इस तरह की हमारे पास इस सेक्शन में 4 क्वेश्चंस है, और सभी में इसी तरह से हम कोडिंग करेंगे। डेली का 1, वीकली 2, मंथली 3, ओकेजनली 4, रेयरली 5। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें मैं एसपीएसएस में आते हैं हम, ये है। कल के सेशन में आपने अगर ध्यान दिया हो, उन्होंने कहा था कि एसपीएसएस में आपको 3 विंडोज याद रखनी है। फर्स्ट विंडो होती है आपकी डेटा व्यू, ये आपका डेटा व्यू है, एसपीएसएस है। एसपीएसएस का आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं सभी अपने लैपटॉप में। अभी अगर उसको बताने का मुझे भी ऐसा बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई। फर्स्ट व्यू, ये जो विंडो है वो है डेटा व्यू। सेकेंड विंडो है आपकी वेरिएबल व्यू। डेटा व्यू में सारी चीजें सिर्फ नंबर्स में होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, इसको कोडिंग कहते हैं। यहाँ की कोडिंग, ये वाली कोडिंग और जो ऐप डिजाइनिंग के लिए कोडिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हम डेटा कोडिंग कर रहे हैं। फिर वेरिएबल व्यू है। वेरिएबल व्यू में यहाँ पे जो भी हम डिफाइन करते हैं एक्चुअली, कि जो हमने यहाँ पे डेटा व्यू में 1 2 4 3 4 सब लिखा हुआ है, इसकी एक्चुअली वेरिएबल व्यू में है ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स है। इसका मैंने यहाँ पे देखी वैल्यूज में नन लिखा हुआ है। इसका एंट्री मैं एक बार आपको बताती हूँ, कंट्रोल एन, ये एक नई शीट है वेरिएबल व्यू, और ये डेटा व्यू है। वेरिएबल व्यू में फर्स्ट है आपका नेम। जब भी आप कुछ एंट्री करेंगे यहाँ पर लेबल में, तो अपने आप ये फर्स्ट रो जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चनर में है ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब कभी भी हम इस तरह से यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और वापस एसपीएसएस में आते हैं, और अनटाइटल 2, ये आपकी नई शीट है। कंट्रोल भी यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी कर चुकी हूँ मैं। यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट आएगा, इसके बाद पूरा स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। इसकी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हमने खुद करके सीखा है, इससे ये सब हमें नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चनर में जाते हैं, और ये जो 1 बुलेट पॉइंट्स है इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, फिर एसपीएसएस में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा। इसके अब यहाँ पे अगर अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही यहाँ मैंने पेस्ट किया हुआ है, सारा एक्टिवेट हो गया है फर्स्ट रो। इसमें उसने अपने आप दिखा दिया कि वेरिएबल 1 है ये, और वेरिएबल 1। अब दूसरा और क्वेश्चन, मैं दूसरे क्वेश्चन भी अगर टाइप करूंगी, जब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी, तब उसमें देखिए क्या होता है। सेकंड है ये, कंट्रोल सी, और फिर से आप एसपीएसएस में गए, इधर गए, और अब मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे 2 इस तरह से ऑप्शन दे सकती हूँ। ठीक, अब इस तरह सारे क्वेश्चंस में, और भी क्वेश्चन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, पेस्ट कर सकती हूँ। मैं कर ही लेती हूँ एक बार, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी। कंट्रोल सी,
3 क्वेश्चन एटलीस्ट हमारे पास है, अभी और भी बताना है इसमें क्या चीज है। अब यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 इस तरह से आ रहा है। अब जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हर बार इसी तरह से आएगा, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। इसमें इस तरह से ना आए इसके लिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन मीन्स कि हम इसको कह देते हैं कि Q1, इसको हम बोलते हैं Q1। Q1 लिखा है तो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं इसको Q और फिर मैं डैश लगा दूं, डैश लगाने के बाद 1 लिख दूं और फिर मैं इसको एंटर करूं तो ये नहीं आएगा, इसमें इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर, तो इसमें जनरली कुछ कैरेक्टर वो ये जो सेक्शन है, नेम का सेक्शन है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। सेकेंड वाला जो है वो Q2 है। इस तरह से क्वेश्चन 2 हम कर सकते हैं, इसको हम क्वेश्चन 3 लिख सकते हैं इस तरह से, और सो ऑन, ऐसे हमने काफी सारी एंट्री की हुई है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसी वेरिएबल को जाकर देखें, इस वेरिएबल पे 1 2 3 ये जो लिखा हुआ है 1 पे अगर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करें, हम वापस डेटा व्यू में पहुंच जाएंगे और ये Q1, Q2, Q3। इसका मतलब ये है कि जब एक रिस्पॉन्डेंट्स आपके पास 200 रिस्पॉन्डेंट्स या 100 रिस्पॉन्डेंट्स, उसमें जो पहला रिस्पॉन्डेंट्स है उसकी जो डेटा एंट्री होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी इस तरह से। फिर जो नेक्स्ट रिस्पॉन्डेंट है उसकी डेटा एंट्री होगी इधर सेकेंड वाले रो में होगी, थर्ड वाली रो में होगी, इस तरह से होती रहेगी आगे। फिर Q1 पे डबल क्लिक करेंगे जब, वापस आप वापस वेरिएबल व्यू में पहुंच जाएंगे। मतलब उसके लिए आपको बार बार यहाँ जाके विंडोज पे जाकर ओपन करने की ऐसा जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस जो आपका है अनटाइटल टू, यहाँ पे मैंने एंट्री उसमें जब बता रही हूँ आपको, तो वेरिएबल व्यू में जाकर अगर आप डायरेक्टली यहाँ से जाना चाहते हैं डेटा व्यू में, यहाँ से भी जा सकते हैं। इसको फिर से क्लिक करेंगे, वापस आप वेरिएबल व्यू में आ जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ ऑफन डू यू शॉप ऑनलाइन, ये है। इसके बाद मुझे इसके ऑप्शंस चाहिए, आंसर के लिए मुझे ऑप्शन चाहिए जो कि रिस्पोंडेंट्स ने टिक किए होंगे क्वेश्चनर में प्रिंटेड फॉर्म में। मुझे डेटा एंट्री करनी है इसलिए वैल्यूज में आते हैं, नन लिखा हुआ है यहाँ पे सब में। अब ये वाला जो छोटा सा बॉक्स है इसमें मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है कि वैल्यू लेबल्स पे है। वैल्यू लेबल्स ये जो मैंने आपको क्वेश्चनर में पहले लिखा हुआ था, डेली मीन्स 1, वीकली मीन्स 2, मंथली मीन्स 3, ओकेजनली मीन्स 4, मतलब इस तरह से कोडिंग। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी रिस्पोंडेंट ने मंथली पे क्लिक किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे रिस्पोंडेंट है, किसी ने ओकेजनली पे टिक किया होगा, किसी ने डेली पे टिक किया होगा, इस तरह से मैं इसकी एंट्री कर सकती हूँ। अनटाइटल इसमें आते हैं तो पहले वो एंट्री तो यहाँ चलेगी, डेटा व्यू में चलेगी, लेकिन मैं वैल्यूज पहले डिफाइन कर देते कि 1 मीन्स व्हाट। 1 है, इधर लिखेंगे हम, लेबल में लिखेंगे हम डेली, डेली, फिर हुआ ऐड, इसको ऐड करना है, स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करिए। डेली है। सेकंड इज वीकली, वीकली ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे लोग, हो सकता है डेली भी करते होंगे ब्लिंकिट वगैरह से। थर्ड है, थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें, थर्ड है मंथली, ओकेजनली एंड रेयरली। मंथली, occasionally, and fifth is rarely. And अगर मैं इसको ओके कर देती हूँ, इसको ओके कर दिया है तो यहाँ पे सारी एंट्री हो गई है। इसको फिर से एक बार क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। जिस तरह से ये एंट्री की हुई है यही है, इस तरह से सभी एंट्रीज करनी है आपको। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 में मुझे ओकेजनली, मुझे ऐसा लग रहा है ओकेजनली की स्पेलिंग शायद गलत है या कुछ भी जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उस पर जाके मैं सीधे क्लिक कर सकती हूँ और इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे कि रिमूव, एक ऑप्शन हो जाएगा रिमूव। पर मुझे रिमूव नहीं करना है एक्चुअली, से मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो सीधे मैं लेबल पे जाती हूँ और एक एल और बढ़ा देती हूँ। इसके बाद ये अपने आप, मैंने जैसे यहाँ पे एल टाइप किया हुआ है, ये ऑप्शन दूसरा एक्टिवेट हो गया चेंज। इसको चेंज पे क्लिक करना है वापस, और अभी भी मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर सकती हूँ। अगर मैं इसको फिर से रिमूव कर दूंगी मुझे दोबारा से एंट्री करनी पड़ेगी। अगर रिमूव कर देती हूँ तो रिमूव हो जाता है, फिर ये ओके कर देते हैं इसको। इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। फिर भी अगर मुझे चाहिए कि 1 2 3 5 हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन नहीं है, 4 पे मैं फिर से लिख सकती हूँ और उसमें लिख सकती हूँ ओकेजनली, OCCA ओकेजनली। इस तरह से फिर से मैंने किया है। इस बार ऑप्शन दोनों चेंज और रिमूव दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे वो नहीं दिख रहे हैं आपको, एक्टिवेट हो जाएगा ऐड ऑप्शन। जो ऐड आपको ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। इसी तरह से आप सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है इसमें, विच डिवाइस डू यू यूज
डू यू यूज मोस्ट ऑफन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग? इसमें भी आप जाइए, क्लिक करिए और छोटे वाले बॉक्स में आप क्लिक करते हैं वन फॉर व्हाट, वन फॉर क्वेश्चनियर में लिखा हुआ है। आप ऑनलाइन शॉपिंग किसमें, स्मार्टफोन से करते हैं, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ जाइए वापस और फिर यहाँ पे लेवल कंट्रोल वी, और इसको यही है, थोड़ा बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें, बुलेट पॉइंट्स को हटा के करना है। फिर इसको ऐड करते जाइए, जब तक ओके तब तक नहीं करना जब तक आपकी पूरी एंट्रीज नहीं हो जाती। सेकंड है, फिर आप इसमें आइए क्वेश्चनियर में, इसमें लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन है लैपटॉप या डेस्कटॉप। इसको मैं पहले बुलेट को ऑफ कर देती हूँ जिसे एंट्री करनी होती है। मैं टाइप भी कर सकती हूँ, मैं कॉपी भी कर सकती हूँ। थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड है टैबलेट। इस तरह से, अभी ये बुलेट नहीं हटा था शायद, अभी ये बुलेट हटा दिया, टैबलेट है, इसको अब ऐड कर दिया। अब मेरे तीनों ऑप्शंस जब ऐड हो चुके हैं तब मैं इसे ओके कर सकती हूँ। इसी तरह से हमने सारे ही क्वेश्चंस की एंट्री की हुई है, ये आपको एंट्री करके दिखाया है। ऐसे ही है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म डू यू यूजुअली शॉप फ्रॉम? कौन से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आप जो चीजें खरीदते हैं ज्यादा। तो इस तरह से ही आपको एंट्रीज करनी है। मुझे लगता है आप शायद थोड़ा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो ये जो दूसरी शीट है एफडीपी सैंपल, इसमें हम आते हैं वापस। इसमें हमने सारी एंट्रीज की हुई है। देखिए इसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप ओके करना है, इसमें कुछ नहीं ओके करना है। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, स्मॉल बॉक्स में जाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, मीशो, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। और अब अगर मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना है तो वापस मैं सीधे क्रॉस कर दूंगी और आगे चल सकते हैं। इसी तरह से और क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू जनरली बाय ऑनलाइन? किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आप जो ऑनलाइन खरीदते हैं? इस तरह की सभी एंट्रीज मैंने की हुई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनलिमिटेड नंबर ऑफ एंट्रीज यू कैन डू। ज्यादातर 6 7 8 इससे ज्यादा होती नहीं है। ऑप्शन आंसर के ऑप्शन इतने ही रहते हैं जनरली, ज्यादा भी हो सकते हैं पर फिलहाल इतने ही। अब ये इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस की एंट्रीज हो चुकी है। ये आपके जो ऑनलाइन शॉपिंग क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 है, जो वहां तक ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कौन सी स्केल है? फॉर्मेटिव स्केल है। फॉर्मेटिव है। और लिकर्ट स्केल जो क्वेश्चंस है उनको हम रिफ्लेक्टिव स्केल बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके कन्वीनियंस के वजह से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन आपने खुद कह दिया है कन्वीनियंस की वजह से किसी रेस्पोंडेंट ने कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूं, तब तो ठीक है, पर वो कितना करता है ये एनालाइज करने के लिए हम लिकर्ट स्केल का यूज करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो कि 1st से लेके 5th तक है, ये फॉर्मेटिव स्केल क्वेश्चन है। इसको मैंने वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 इस तरह से ही रखा है क्योंकि मैं ये बताने के लिए कि अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो वापस ये सारा आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको लेबल कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ से भी हम लेबल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Q1 इधर लिख दिया, Q2 फिर है Q3, इसको Q4, इस तरह से ये आइडेंटिफाई करने में ठीक रहता है। इस तरह से आपने लिखा हुआ है तो Q1 पे सीधे आप पहुंच गए। ठीक है, वेरिएबल 1 इस तरह से डिफाइन करने की जरूरत ज्यादा रहती है। अच्छा, अब ये रिस्पोंडेंट जो है हॉरिजॉन्टली जो चल रहे हैं, ये सब एक एक रिस्पोंडेंट है। इस तरह से मेरे पास 50 रिस्पोंडेंट्स भी हो सकते हैं और मेरे पास ज्यादा भी हो सकते हैं, 400 300 इस तरह से भी काफी सारे रिस्पोंडेंट्स हो सकते हैं जिनका मुझे डेटा मैंने कलेक्ट करके उसकी कोडिंग की हुई है यहाँ पे। अब क्वेश्चनर में वापस आते हैं। अब आपके पास सेक्शन बी है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इन ऑनलाइन शॉपिंग। इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उसमें देखिए कभी कभी हम जब ये भी रिफ्लेक्टिव स्केल है पहली बार, क्योंकि इसमें भी ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक। ऑनलाइन शॉपिंग इज कन्वीनियंट बिकॉज इट सेव्स मी टाइम। एक बार में हमने एक ही कंस्ट्रक्ट पूछा हुआ है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग इज कन्वीनियंट, कन्वीनियंट है यहाँ पर। सेकेंड इज फाइंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स टू बी रिलायबल एंड क्लियर, मतलब इसमें रिलायबल एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन, इसकी वजह से हम ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। हाईलाइट कर देते हैं। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योर पेमेंट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज सिक्योर पेमेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग में, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग को हम प्रेफर करते हैं। I often rely on customer reviews before making a purchase. That means customer reviews is important for us. Then discounts and details, special deals, ये भी
इन्फ्लुएंस करती हैं ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर को, इस वजह से इसको भी मैं हाईलाइट कर सकती हूँ सभी। फिर 6th है जो ट्रस्ट इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये जो अपनी क्रेडिबिलिटी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वो भी मैटर करती है, जो सभी जिसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसा मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। अब एक सेंटेंस में एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है, कन्वीनियंट, ये ठीक है, रिफ्लेक्टिव स्किल तो भी है ये, लेकिन मैं इसको सभी फैक्टर्स जो है वो अभी मैं सोच रही हूँ कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है ये। अगर मैं इसको और डिटेल में एनालाइज करना चाहती हूँ तो कन्वीनियंट के अंदर भी मुझे कम से कम 6 से 7 स्टेटमेंट चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए भी 6 से 7 स्टेटमेंट चाहिए कि एक्चुअली जो एकदम से कह दे रहे हैं कि या कन्वीनियंस की वजह से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो कितना सही बोल रहे हैं, उसके लिए मुझे आगे चल के अभी और क्वेश्चन में सेक्शन डी है उसमें हम देखते हैं और ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे लिकर्ट स्केल क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। तो अभी ये रिफ्लेक्टिव स्केल है, इसको आप 1 से लेके 5 तक आपके पास ऑप्शन है, रिस्पॉन्डेंट्स किसी पर भी टिक कर सकता है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, जो भी है। अब इन सारे स्टेटमेंट्स की भी एंट्री कैसे करते हैं, इसको सीधे मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और लिकर्ट स्केल है। पहले तो हम लोग लिखते थे, इसको टाइप करते थे, जब पता नहीं था क्वेश्चनर एक प्रिंटेड फॉर्म में रखते थे, उससे देखते थे फिर टाइप करते थे और मालूम नहीं था जब तक, और फिर एक दिन करके देखा है बस तो पता चला कि सीधे आप इसे एक्सेल की तरह यहाँ पे जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स एक साथ आपके पेस्ट हो गए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग अक्सर ये किया करिए कि जब भी नया सेक्शन कुछ एंटर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक वेरिएबल और बढ़ा लेते हैं, इंसर्ट वेरिएबल। अब आप यहाँ पर देखिए कुछ वेरिएबल क्वेश्चन, यहाँ तक तो वेरिएबल 3rd था, वेरिएबल 4, 5, 6, 7 में क्या करता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि कभी भी ये वेरिएबल का सीक्वेंस अपने आप चेंज नहीं करता है। मैंने यहाँ पर वेरिएबल 2 मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसमें सिर्फ इतना लिखना था मुझे कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इन ऑनलाइन शॉपिंग, पूरा नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और कर सकती हूँ, इधर पे मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए IF बस लिख लेते हैं, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। अब इसको थोड़ा ब्लैंक छोड़ें जिससे आपको ये पता चले कि ये स्टेटमेंट्स किसके लिए पूछे गए हैं, अदरवाइज इसमें भी आपको बहुत कंफ्यूजन होगा और आप गलतियां भी कर सकते हैं। अब जैसे से फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे नाम दे दीजिए IF1, सेकेंड इज IF2, IF3, और इसमें अंडरस्कोर को ये एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे IF अंडरस्कोर अगर आपने लिखा हुआ है 4 तो ये ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर इसमें IF और -4 लिखने की आपने कोशिश की है तो ये उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे आप IF4 लिखिए, IF4, फिर है IF5, देन नेक्स्ट इज IF6। ये आप इस तरह से एंट्री कर लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नन लिखा हुआ है, इसको कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन शॉपिंग इज कन्वीनियंट बिकॉज इट सेव्स मी टाइम, इसमें आप जो वैल्यूज वाला सेक्शन है यहाँ पे चलते हैं और फिर से स्मॉल बॉक्स है उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या है, फिर से मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, 1 फॉर यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली, सॉरी स्पेलिंग गलत है इसमें, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली disagree. Second is disagree. Add. Third is neutral, NEUTRAL, neutral. Fourth is agree. 5-point Likert scale है, तो जैसे नंबर लाइन में रहता है कि नंबर लाइन में बीच में 0 रहता है, 0 मीन्स न्यूट्रल, और राइट हैंड साइड तरफ +1 +2 रहता है, तो +1 की तरफ हम +1 +2 मीन्स कि हम अभी एग्री की तरफ जा रहे हैं, 4 ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। और डिसएग्री को हम जनरली 1 और 2 पे रखते हैं, जो कि हम नेगेटिव समझते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, किसी भी कुछ भी पूछते हैं अगर तो इसको हम कोडिंग देते हैं 1, 5 नहीं देते हैं कोडिंग। ये भी कह सकते हैं लोग कि सबसे पहले हमको स्ट्रांगली एग्री लिखना चाहिए, पर ऐसा बहुत सारे कैलकुलेशन फिर आपके हैम्पर हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप। 4th ये है, फिर 5th ऑप्शन जो है वो उसको हम लिख देते हैं स्ट्रांगली एग्री। इसको हम ऐड करने के बाद वापस ऐसे ओके कर सकते हैं।
पहले जब हम लोग को भी नहीं पता था तो हम इसको वापस सभी में एंट्री करते थे, धीरे धीरे टाइम लगता था, 1 हफ्ता लग जाता था कम से कम। अभी धीरे से इसको एक दिन करके देखा है बस, काफी साल पहले कॉपी किया है और उसको नीचे सेलेक्ट किया, शिफ्ट और डाउन एरो की से हम इसको नीचे चलेंगे और सीधे इसको पेस्ट कर सकते हैं आप। जो आपके कीबोर्ड की कीज होती है, शॉर्टकट कीज, उससे भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं पेस्ट। तो ये आपका काफी जल्दी काम हो जाएगा, बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा आपको क्वेश्चनर्स डिजाइन करने में, उसमें भी आप एआई की हेल्प ले सकते हैं, पर कोशिश करिए कि उसका कंटेंट ऐसा हो जो कि थोड़ा पैराफ्रेज्ड हो और उसको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लिटरेचर रिव्यू आपके पास रहे। इस तरह से आपको लेबल करना है इसको, ये लिकर्ट स्केल के क्वेश्चंस हैं। फिर आते हैं वापस क्वेश्चनियर में, मतलब इसको बताया मैंने कि यहाँ पे आप टाइप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सीधे कॉपी पेस्ट वहां पर कर सकते हैं। अच्छा, अब सेक्शन सी में आते हैं, प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग सर्वे। इसमें है कि रैंक करना है आपको। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अट्रैक्टिव प्राइसिंग एंड ऑफर्स इंपॉर्टेंट है, स्पीडी डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, या फिर इजी रिटर्न्स एंड रिफंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, यूजर रिव्यू भी हो सकता है किसी, ये भी हमारे एक दो क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है, पर इसमें जो स्केल है वो थोड़ी अलग दी हुई है, ये जो आंसर के लिए स्केल्स दी हुई है 1 से 5 लेकर, वो थोड़ी अलग दी हुई है। बाकी वही कि यूजर रिव्यूज, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन, ये सब चीजें भी हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। पहला है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, अट्रैक्टिव प्राइसिंग ऑफर्स है, ये इसको हम एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए, रैंकिंग के क्वेश्चंस की एंट्री अलग तरह से होती है। रैंकिंग के क्वेश्चंस है, इधर चलते हैं एसपीएसएस में वापस, एफडीपी सैंपल दूसरे स्लाइड में चलते हैं, दूसरी एसपीएसएस स्लाइड में वेरिएबल व्यू में चलते हैं। अब मैंने रैंकिंग क्वेश्चन को मैंने 2 तरह से एंट्री की हुई है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए पहले तो इस तरह से एंट्री है, ये है रैंक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस। एक तो अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन हाउ इंपॉर्टेंट दे आर टू यू व्हेन सेलेक्टिंग, ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चनर में क्वेश्चन था ये, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन हाउ इंपॉर्टेंट दे आर टू यू व्हेन सेलेक्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। इसी क्वेश्चन की एंट्री हमने यहाँ पे की हुई है एफडीपी सैंपल में। तो किस तरह से की हुई है, देखिए अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है। आपने बस इसको ऑप्शन दिया हुआ है, ओके किया हुआ है, और रिस्पोंडेंट, जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे, अभी एनालिसिस भी इसकी थोड़ी सी बताऊंगी मैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये तरीका वैसे नहीं है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब ये तरीका वैसे रैंक करने का नहीं है कि आप रैंकिंग क्वेश्चन की इस तरह से एंट्री नहीं करेंगे। फिर भी हम एनालाइज करके एक बार मैं बताती हूँ आपको, एनालाइज कैसे, क्योंकि मैंने इसी कोडिंग की हुई है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए एनालाइज पे जाते हैं हम, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और फिर जाते हैं हम फ्रीक्वेंसीज पे। फ्रीक्वेंसी से भी कैलकुलेशन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव से भी कैलकुलेशन हो सकते हैं। पहले हम फ्रीक्वेंसीज पे जाकर देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज पे जाने के बाद मुझे क्वेश्चन चाहिए था अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कीवर्ड लेकर देखते हैं, यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। पर अरेंज, ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये मुझे इस बॉक्स में नहीं चाहिए, वेरिएबल बॉक्स में मुझे चाहिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। एक तो ये, सॉरी, इसको मैं एक एक करके भी दूसरे बॉक्स में ले जा सकती हूँ। जैसे इसको क्लिक किया, ये ब्लू एरो जो है इस पे क्लिक किया, और ये इस बॉक्स में आ जाएगा। फिर मैं आगे और भी करूँ, स्पीडी डिलीवरी एक एक करके करूँ, इससे अच्छा है कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसको वापस अगर इस ब्लू बॉक्स पे क्लिक कर दी, यहाँ पे क्लिक करिए, फिर ब्लू एरो पे क्लिक करिए, वापस ये पहले वाले बॉक्स में आ जाएगा। इसको क्या करना है आपको, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से आपको यहाँ तक इजी रिटर्न्स एंड ये यहाँ तक आपके पास ऑप्शंस थे, इसको आप क्या कर दीजिए, इधर से वेरिएबल बॉक्स में ले जाइए, और कुछ भी आप नहीं करेंगे, सिर्फ आप ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो क्या होगा कि आपके पास ये आउटपुट विंडो है, ये इस तरह से ओके करने की वजह से हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आई हुई है 1 2 3 4 5, ये आया हुआ है, पर इसका कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा। बस इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को कितने लोगों ने कहा है, फर्स्ट रैंक दिया है, या ये जो फर्स्ट ऑप्शन था वाइड रेंज ऑफ, मतलब ये एंट्री सही नहीं है एक्चुअली, इसलिए 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको। इसकी एंट्री कैसे करनी है,
इसको जो आउटपुट विंडो है बार बार ये काफी सारी भर जाएगी, इसको सिर्फ कंट्रोल ए करिए और कंट्रोल ए करने के बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। पूरा डिलीट हो गया है। फिर से चलते हैं हम एफडीपी सैंपल पे। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है, मैंने इस तरह से तो एंट्रीज की हुई है जिससे आपको पता चले कि क्या सही है। ये क्वेश्चन है आपका, रैंक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस बेस्ड ऑन हाउ मच दे इन्फ्लुएंस योर शॉपिंग। मतलब यही क्वेश्चन दूसरी तरह से भी हो सकता था, पर मैंने इस तरह से, मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन है रैंकिंग वाला, जो सिर्फ इस तरह से एंट्री की हुई है, यूजर रिव्यूज, प्रोडक्ट डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, ये सब चीजें। अब इसकी अगर एनालिसिस करनी हो तो फिर से हम एनालाइज पे जाए और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाए, या ये पहला ऑप्शन तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे ही जाना है। इसके बाद फ्रीक्वेंसीज के ऑप्शन में आते हैं, और इसको अभी तो सारे जो मुझे ये जो क्वेश्चंस है हटाने हैं, इस बॉक्स में डालने हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं रीसेट। रीसेट से सारे जो स्टेटमेंट है वापस पहले वाले बॉक्स में आ जाएंगे। अब इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन था रैंक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ये वाला। यहाँ से क्वेश्चन है रैंक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस, लेकिन ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस को लेना है मुझे। और क्या करना है, अभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगी, इसका भी तरीका है दूसरा, बताते इसको। फ्रीक्वेंसी सीधे आप ओके करिए तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकलेगी। अभी मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका रैंक में कैसे कैलकुलेट करूंगी। इसका कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में जाइए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर आप दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसीज के नीचे डिस्क्रिप्टिव्स। अब कभी भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं रैंकिंग वाले, तो आप ऑप्शंस पे जाइए। इस तरह से आपने पूरा किया हुआ है, सब पहले से यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। और यूजर रिव्यूज, एक सेकंड, चलो ठीक है, एंट्री ठीक है। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव्स में आएंगी, पहले से सेट है, इसमें सारी चीजें एंट्री पहले से है। और अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे जाती हूँ। ऑप्शन में जाने के बाद मैं देखना चाहती हूँ कि रैंकिंग करना है मुझे रैंक्स चाहिए, उसका आंसर चाहिए। तो मैंने रैंकिंग की हुई है, पहले हम मीन देखते हैं उनका बस। और इसको भी ये भी अनचेक कर देते हैं, असेंडिंग मीन्स मुझे कुछ भी नहीं चाहिए असेंडिंग मीन्स, पर फिर भी इसने असेंडिंग मीन्स बनाया हुआ है। वेरिएबल लिस्ट चाहिए बस, तभी बाय डिफॉल्ट वेरिएबल लिस्ट पे ही क्लिक रहता है। फिर इसकी क्या मीनिंग है ये भी अभी आगे देखते हैं। कंटिन्यू और ओके। अब आपके पास ये आंसर आएगा यूजर रिव्यूज। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा देख ले, वर्ड फाइल में कॉपी करके देखते हैं। कॉपी किया है, यहाँ से बस क्लिक किया है, डबल क्लिक किया है, कॉपी। वर्ड फाइल में गए, वर्ड फाइल में किसी भी एक फाइल में कंट्रोल एन, यहाँ पे जाकर आप पेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको दिख रहा होगा शायद। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है, जो हमेशा नंबर्स होते हैं, वो राइट अलाइंड होते हैं, इसको हम सेंट्रल अलाइन कर लेते हैं। मीन में अब देखिए यूजर रिव्यूज जो है उसकी वैल्यू है 2.99, 2.97, 2.78, 3.2 और इस तरह से सभी लिखी हुई है। लेकिन ये अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, एज इट इज है। मतलब कि जो आपकी यूजर रिव्यूज है इनके बेसिस पे ये सारी वैल्यूज अरेंज्ड है। अब आप वापस आइए एसपीएसएस में, फिर इधर चलते हैं हम। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, एनालाइज है। फिर जाइए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, सेकेंड ऑप्शन इज डिस्क्रिप्टिव्स, इस पे जाइए। और अब ऑप्शंस में आके वापस मीन पे क्लिक किया हुआ है आपने पहले, सम पे भी क्लिक कर दीजिए। और हो सके तो असेंडिंग मीन्स, डिसेंडिंग मीन्स या असेंडिंग मीन्स, जैसे मीन्स आपको चाहिए। जनरली हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स वैल्यू के आधार पे, अभी यूजर रिव्यू लिखा हुआ है पहला, अभी ऐसे जब हम मीन की आधार पे इसको असेंडिंग मीन्स पे क्लिक कर देंगे तब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। और इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए इसमें यूजर रिव्यू पहले आ रहा था, अब सेकंड वाले में आ रहा है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, मतलब इसकी मेन वैल्यू सबसे ज्यादा थी। अच्छा, सम जो ऑप्शन है वो क्यों किया हुआ है, एक सेकेंड, कॉपी। ये देखिए, इसको सम जो ऑप्शन है इस पे जो क्लिक करने का मतलब ये है कि इसका सम जो है, अब आप बोल रहे हैं मीन सबसे ज्यादा किसका, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का, और सम सबसे कम इसका है। सम कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रैंक सबसे ज्यादा लोगों ने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को दिया, सेकंड रैंक जिस प्रोडक्ट डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस को दिया है,
थर्ड यूजर रिव्यूज को, फोर्थ एंड सो ऑन, इस तरह से सब दिए हैं। तो जिसका सम सबसे कम होता है वो फर्स्ट रैंक है उसकी, मतलब मीन रैंक। अगर हम चाहें तो इसमें एक ऑप्शन और इंसर्ट करें और राइट में, और यहाँ पर हम रैंकिंग इसको ऑटो फिट टू विंडो कर देते हैं, ऑटो फिट टू विंडो। और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि फर्स्ट रैंक इसका ही, फर्स्ट रैंक इसका है। सेकेंड रैंक ये तो ऑलरेडी मीन के हिसाब से अरेंज्ड ही है, पर सम भी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जिसका सम सबसे कम है वही फर्स्ट है, मतलब ये तो रैंक हो ही गई है, पहले ही रैंकिंग है, इसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सम जिसका सबसे कम है वो सबसे ऊपर है। तो ये रैंकिंग क्वेश्चन इस तरह से हैंडल करना है। और एक्चुअली ये क्वेश्चन से के बेसिस पे सारी एंट्रीज है। अब ये है, इसी तरह से सभी एंट्रीज है। ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन योर ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स अरेंज दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट फ्रीक्वेंटली परचेज। ये भी रैंकिंग ही है कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा सबसे पहले, इसकी भी एंट्री इस तरह से ही करनी है। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। फिर इस तरह की सारी क्वेश्चन है। फिर एक है सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया था कि कन्वीनियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बाय ऑनलाइन, ये लिखा हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग इज कन्वीनियंट बिकॉज इट सेव्स मी टाइम। अब हम इसमें जाकर देखते हैं तो एटीट्यूड ऑफ ऑनलाइन बायर्स टुवर्ड्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये लिखा है आपने कन्वीनियंस। कन्वीनियंस को असेस करने के लिए आपके पास स्टेटमेंट है 5, मतलब कि आपको पता नहीं है कि वो कितना कन्वीनियंस के कारण चीजें खरीदते हैं, परचेज करते हैं बायर्स जो है ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन मैंने उनसे बार बार पूछा, जैसे अगर मुझे कोई इनकम नहीं बता रहा हो कोई रिस्पोंडेंट कि उनकी इनकम कितनी है, आप उसकी शॉपिंग हैबिट से समझ सकते हैं कि वो इतनी शॉपिंग है कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, कहाँ जाता है, उसका घर कैसा है, थोड़ा सा लेवल का, इनकम लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। बस ये वही चीजें हैं। जैसे कि एक मेरे छोटी सी फाइल है मेरे पास, बॉलीवुड लिखा हुआ है इस पे। ये देखिए, ये 5 स्टेटमेंट है, ये किसके बारे में पूछे गए। जैसे ही इज शहंशाह किंग ऑफ बॉलीवुड, ही हैज प्लेड एंग्री यंग मैन रोल्स, ही इज सिंगर, प्रोड्यूसर, टीवी 200 plus films till 5 decades. He has received Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan awards. He suffered health and financial issues in 1990s. और आई थिंक कि आप सबको पता होगा अमिताभ कि ये बच्चन मैम। बातें की गई है, अमिताभ बच्चन के बारे में बात की गई है। तो वही चीज है इसमें भी, क्वेश्चनियर में भी। ये सारे स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, ये किसके बारे में है, कन्वीनियंस के बारे में बात की जा रही है। तो आपके पास इसी कन्वीनियंस को असेस करने के लिए 5, 7, 8 कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। उस स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हैं, थोड़े कम में भी हम ला सकते हैं कि भाई मुझे इतने स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, पर उसको भी हम पहले डेटा कोडिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस। इसको भी असेस करने के लिए वी हैव 6 स्टेटमेंट्स। 6 हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। आप इसको कितना स्टेटमेंट्स लेना चाहते हैं अपनी रिसर्च में, वो डिपेंड करता है। फिर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फैक्टर्स हैं, उसमें भी 5 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। आई फाइंड इट इजी टू मेक इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजंस, द इमेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स displayed online accurately represent the items I will receive. ये ट्रस्ट के ऊपर, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते हैं। अब पहली बात, जब हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, ये चलते हैं कन्वीनियंस पे, एटीट्यूड पे। तो ये जो कन्वीनियंस है, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस है, इनको हम कहते हैं, एक्चुअली जितने भी हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फैक्टर्स हैं, इनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट, CONSTRUC, इनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट। और इसमें जो 5, 6, 7 स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, इनको असेस करने के लिए, कन्वीनियंस को असेस करने के लिए जिन स्टेटमेंट के माध्यम से हमने असेस करने की कोशिश की है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। यहाँ पे मैं कहीं पर लिख सकती हूँ, इधर ही लिख देती हूँ, वेरिएबल्स। इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, स्टेटमेंट्स ना बोल के हम इसको वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स ना लिख के हम इसको वेरिएबल्स कह सकते हैं कि वेरिएबल्स हैं।
अब इनकी एंट्री भी वही है कि कन्वीनियंस। अब इसकी एंट्री देखिए, यहाँ पर अगर ऐसे ही सीधे कॉपी पेस्ट करिए, कॉपी, फिर नई स्लाइड में जैसे नए स्पीसेस के जो विंडो है उसमें जाते हैं, एक छोड़कर थोड़ा सा 11 वाला सेक्शन छोड़ के 12 सेक्शन पे आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद वापस मुझे यही देखिए, अगर मेरे पास आंसर करने के लिए यही ऑप्शन है स्ट्रांगली डिसएग्री, तब तो ठीक है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 फॉर व्हाट, 2 फॉर व्हाट, इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लिक करिए आप कॉपी, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ डाउन एरो की आप प्रेस करिए और यहाँ पे आके आप प्रेस कर दीजिए, इसको मतलब पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको कन्वीनियंस है, ये कन्वीनियंस के ऊपर क्वेश्चन थे तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कन्वीनियंस। और अब यहाँ पे आप चाहो तो CON ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए CON1, CON2, फिर CON3, CON4, CON5, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी स्टेटमेंट्स की हमने अभी वेरिएबल व्यू आपको बता रही हूँ, बाकी डेटा व्यू की आपके पास है, ऑलरेडी एंट्री है। ये चलते हैं FDP सैंपल, इधर देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से इसकी एंट्री की कन्वीनियंस की, देखिए कन्वीनियंस में CONV लिखा हुआ है, कन्वीनियंस, फिर कन्वीनियंस 1, कन्वीनियंस 2, कन्वीनियंस 3, 4, इस तरह से इसके जो स्टेटमेंट्स है वो, और इसके जो ऑप्शन है आंसर करने के लिए ऑप्शन जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री, ये सब लिखे हुए। अच्छा, एक ऑप्शन आपको बताया नहीं मैंने, ये न्यूमरिक क्या होता है। न्यूमरिक का मतलब होता है कि हमारा जो कंप्यूटर वैसे भी जो भी चीजें डिजिटल होती है, डिजिटल मीन्स कोडिंग, नंबर्स जिन चीजों का साइन होते हैं उनको ही एनालाइज कर पाता है। अगर हम इसको कहीं पर, ये यहाँ पे एक छोटा बॉक्स है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन। स्ट्रिंग पे क्लिक कर दिया आपने तो फिर ये एनालाइज नहीं करेगा डेटा, ये हमेशा छोड़ देगा इसको। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हो सके तो सभी चीजों को आप न्यूमरिक रखिए। जैसे कन्वीनियंस है, इसको आप चाहे तो स्ट्रिंग लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मुझे एनालाइज नहीं करना है, तो इसको स्ट्रिंग पे आप क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। और नेक्स्ट जो है इसको आप न्यूमरिक रखिए, क्योंकि इसमें मैंने कोडिंग की हुई है, तो ठीक है। फिर इसी तरह से ये सभी चीजें हैं कन्वीनियंस। अब मुझे अगर इसको एनालाइज करना है तो मैं कैसे करूंगी। अगर जैसे अभी आपने ऊपर एनालाइज किया, मैंने ये जो आउटपुट विंडो थी यहाँ पे एनालिसिस हुई है, अब मुझे इसको एनालाइज करना है तो कैसे करेंगे। Ctrl+A, इसको मैं डिलीट करती हूँ अभी। फिर आप आइए वापस SPSS में, FDP सैंपल इसी में आते हैं, और कन्वीनियंस है। अब मुझे कन्वीनियंस को असेस करना है तो मुझे सभी स्टेटमेंट्स का, देखिए इसमें कन्वीनियंस पे फर्स्ट पे मैं क्लिक करती हूँ 39 रो पे, और हम यहाँ पहुंच जाते हैं कन्वीनियंस 1, कन्वीनियंस 2, 3, 4, इस तरह से। अब अच्छा एक चीज और, ये कन्वीनियंस में यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5.00 आ रहा है। ये एक्चुअली डेसिमल के 2 प्लेसेस है, मतलब कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ये डिजिट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। अब क्या है कि मुझे इन सभी स्टेटमेंट्स का चाहिए एवरेज, तो यहाँ पे मैंने एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है। एवरेज कैलकुलेट तभी मैं इस पर कुछ भी एनालिसिस कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे सभी स्टेटमेंट का सम चाहिए, एक्चुअली एवरेज चाहिए। एवरेज चाहो तो इससे क्लिक, आपका एक्सपेसेस से भी कैलकुलेट हो सकता है, और चाहे तो कैलकुलेट हो सकता है आपका एक्सेल के थ्रू भी कैलकुलेट हो सकता है। तो एक्सेल के थ्रू कैसे होता है, देखिए एक्सेल भी हम ऑन करते हैं। ठीक है, अब SPSS में आए, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है पूरा डेटा। ये ऊपर वाला डेटा एक्सेल में आएगा ही नहीं, जो नीचे है 1 से लेके 400 या जो भी 300 तक, वहां तक आएगा, कॉपी है। फिर इसको हम एक्सेल पे जाते हैं, और एक्सेल पे यहाँ पे जाकर हम पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ रेड से, कि जो भी वैल्यूज आएंगी वो रेड कलर में आएंगी। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इक्वल टू का फॉर्मूला लगाती हूँ, और मुझे चाहिए एवरेज, तो इक्वल टू के बाद मैं AVE इतना ही टाइप करूंगी, मेरे पास ये आ जाएगा एवरेज का ऑप्शन। इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप ये देखिए ब्रैकेट आ जाता है। ब्रैकेट में मुझे रेंज डिफाइन करनी है, तो रेंज B1 से लेके मैं यहाँ तक F1 तक आती हूँ, और इसके बाद मुझे ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो ये कैलकुलेशन नहीं करके देगा। अगर आप चाहे तो एंटर करके देखो तो भी हो गया है फिलहाल, पर ब्रैकेट था उसमें। तो ब्रैकेट अगर आप नहीं देते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेगा, ये मुझे यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा, शिफ्ट।
फिर इसको एंटर कर दिया। अब ये 4.8 इसका मीन कैलकुलेट हुआ। मीन कैलकुलेट मतलब कि इसको पहले सम किया 5 5 प्लस 10 प्लस 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 5 24 24 को मैंने डिवाइड किया है 5 से ही, मतलब कि क्या हुआ, सेक्शंस कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5 से डिवाइड किया, इस वजह से 4.8 इसकी वैल्यू आई है। अब मुझे ये पूरा या तो मैं ऐसे करके ड्रैग करूं 400 तक, काफी टाइम लगेगा, बहुत देर तक ऐसे चलना पड़ेगा, या फिर ऊपर चलते हैं इसको, काफी नीचे तक आ चुके हैं, मतलब जहां तक ड्रैग करेंगे वहां तक की वैल्यू आएगी। यहाँ चलते हैं 4.1 तक, इस पे 4.8 तक ही चलते हैं। और ये जो छोटा सा स्क्वायर शेप का जो ये डॉट है एक्सेल की शीट पे ही, एक सेकेंड, इस पे मैं डबल क्लिक कर दूं, सबको पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा ये ऑप्शन। इस पे डबल क्लिक करने से ये पूरा जहां तक मेरे पास रेस्पोंडेंट्स है वहां तक ये कैलकुलेशन इसका हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट क्लिक करके आप कॉपी कीजिए और एक्सेल यहाँ पे एसपीएसएस में जाइए, और यहाँ पे पहले से यहाँ पे है मीन ऑफ कन्वीनियंस। अगर मैं चाहूँ तो उसको फिर से एक वेरिएबल एंट्री करके मैं इंसर्ट वेरिएबल, राइट क्लिक किया है जैसे एक्सेल में काम करते हैं, इंसर्ट वेरिएबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे बस लाकर फर्स्ट वाले सेल है इस पे लाकर मुझे पेस्ट कर देना है, पेस्ट। अब वही वैल्यूज है जो पहले आई थी, क्योंकि इसमें से कुछ चेंज पहले नहीं हुआ है, ठीक है। फिर से हमने कैलकुलेशन किया है तो भी यही आया है। अब अगर यह है कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसका सम जो है या जो मीन है मुझे इससे चाहिए एसपीएसएस के थ्रू, तो कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे जो कैलकुलेशंस है वो इस पे ही होंगे, ये अलग अलग स्टेटमेंट इन पे नहीं होंगे। इन पे बस मुझे ये मिल सकता है कि हर एक स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिवेरिएट, सब में पाई चार्ट बनेगा। अगर आप चाहो तो एक बार मैं दिखा सकती हूँ इसको कैसे एनालाइज करना है। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज पे अगर आप चाहते हैं, इसको रीसेट कर दीजिए पहले, और आपका कन्वीनियंस पे क्वेश्चंस होंगे। ये कन्वीनियंस पे क्वेश्चन है, कन्वीनियंस पे क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, और ये वेरिएबल 2 जो हमने मीन स्कोर निकाला हुआ है, मीन स्कोर ये वाला वेरिएबल 2 वाला तो अभी निकला है ये, और ये पहले से था मीन कन्वीनियंस जो निकला हुआ है। तो ये जो ऑप्शंस है इसको मैं क्लिक करती हूँ शिफ्ट और डाउन एरो की के साथ, और इसको हम चले जाते हैं वेरिएबल्स। इधर जाने के बाद अब इसको भी देखिए किस तरह से आएगा। स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, कुछ भी आप नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ ओके कर दिया है आपने तो भी ये कैलकुलेट करके देगा आपको फ्रीक्वेंसीज सभी की, ठीक है। अभी एंट्री थोड़ी रफली है, बहुत डेटा क्लीनिंग नहीं हुई। क्लीनिंग का मतलब यही है कि आपने जो देखा स्ट्रांगली डिसएग्री में थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं आई प्रीफर ऑनलाइन शॉपिंग बिकॉज इट सेव्स मी टाइम, तो इसमें डिसएग्री करने वाले लोग ज्यादा है, एग्री करने वाले लोग कम है। तो इसको थोड़ा सा डेटा क्लीनिंग, डेटा कोडिंग और डेटा एडजस्टिंग ये सब भी हमें करनी पड़ती है। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो एंट्री पर है, तो अगर आप इसे जस्टिफाई कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जैसा है वैसा रहने दीजिए। अच्छा, ये आपको टेबल बना के देगा अपने आप। अभी इसको फिर से आप कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर दीजिए, फिर से जाइए एनालाइज पे, अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाइए, फ्रीक्वेंसीज पे जाइए, इस बार स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या चाहिए, मीन। फिर अगर आपको चाहिए मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आपको चाहिए रेंज, आपको चाहिए मिनिमम, फिर मैक्सिमम और कंटिन्यू, ये सब भी आप क्लिक कर सकते हैं। और पर ये है कि जो उन्हीं चीजों को क्लिक करिए जिसकी पूरा इंटरप्रिटेशन आप कर सके, पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। जरूरी नहीं है जितना भी एसपीएसएस में जितने ऑप्शन है सारे के सारे यूज नहीं होते हैं, जितना सबके अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज होते हैं। हम सोशल साइंस रिसर्च कर रहे हैं तो जितने ऑप्शन यूज हो सकते हैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये तो आपका वैल्यूज थी स्टैटिस्टिक्स में जो आपने क्लिक की हुई है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद अभी ओके तब तक नहीं करना है जब तक आपके पूरे ऑप्शंस यहाँ पर आ ना जाए। सेकंड ऑप्शन है चार्ट्स। चार्ट्स में देखिए कि क्लिक किया आपने, अब ये देखिए सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो यूनिवेरिएट है। यू आर नॉट चेकिंग दीज स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इनकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा चार्ट बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए पाई चार्ट। आप चाहे तो बार चार्ट भी बना देंगे, तो सॉफ्टवेयर है वो बना देगा, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दैट विल बी रॉन्ग।
पाई चार्ट पे आप क्लिक करिए और यहाँ से फ्रीक्वेंसीज पूछेगा वो कि ग्राफ में आपको फ्रीक्वेंसीज चाहिए या परसेंटेज चाहिए। तो जनरली फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करो तो परसेंटेज ही देता है, परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू। और ज्यादातर बहुत ज्यादा जरूरत है असेंडिंग वैल्यूज चाहिए, डिसेंडिंग वैल्यूज चाहिए, इन सब पे भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर चाहे तो, जरूरत नहीं पड़ती इनकी हालांकि। फिर ओके कर दिया आपने, ओके किया है। इसके बाद देखिए क्या ऑप्शन आता है इसमें, ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, एनालाइज पे जाके हम डिस्क्रिप्टिव पे गए। डिस्क्रिप्टिव पे जाने के बाद हमने ये वाला ऑप्शन जिसमें एक तो फ्रीक्वेंसी वाला था, यूजर रिव्यूज, ये सब थे ऑप्शंस हमने क्लिक किए हुए हैं कि मीन भी चाहिए, सम भी चाहिए, सब चीजें चाहिए हमको। तो इस वजह से हमें पहले ये वाला टेबल मिला हुआ है। इसमें ये बता रहा है कि हर एक स्टेटमेंट का रो जितनी भी है का मीन वैल्यू क्या है, सेकेंड रो में है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, रेंज क्या है सबकी, और मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम मतलब कि जब ये आंसर किया गया है, कोडिंग की गई, तो सबसे ज्यादा संख्या जो थी वो 1 ऑप्शन को क्लिक करने वालों की थी, और सबसे ज्यादा संख्या उन रिस्पोंडेंट्स की थी जिन्होंने क्या किया है, मतलब सबसे ज्यादा ऑप्शन 5 का था। मिनिमम वैल्यू वहाँ पे 1 थी और मैक्सिमम वैल्यूज वहाँ पर 4 थी, मतलब ये रेंज बताई गई। और इन दोनों को हमने मिनिमम मैक्सिमम से मिनिमम को आप माइनस करेंगे तो इसकी रेंज निकल आएगी। इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली हमको अपने थीसिस में या जब भी हम करते हैं ऐसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस भी कैटेगरी का, जिस भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा, वो क्वेश्चन या उस रिस्पोंडेंट्स ने उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जो किया है वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली किया होता है। अब जब भी हम ये फ्रीक्वेंसीज ये वाली कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी टेबल अपने आप आता है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल पर क्लिक नहीं किया था। वो सपोर्टिंग है कि आप देख लीजिए कि सही है कि नहीं ऊपर वाला मीन, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस तरह से वो सारे ऑप्शंस देगा। अच्छा, दूसरी चीज हमने ग्राफ पे भी क्लिक किया हुआ था, तो ग्राफ पे क्लिक करने की वजह से यहाँ पे हमें ग्राफ भी मिलेंगे, लेकिन ग्राफ बस ये है कि स्टेटमेंट के साथ नहीं मिल रहे हैं इसमें। जैसे ये स्टेटमेंट है, इसके जस्ट नीचे आ जाता है, ये थोड़ा काम हमें खुद करना पड़ेगा। अब क्या है, इसको हम यहाँ पर ही एडिट भी कर सकते हैं। देखिए टेबल्स जो है, टेबल्स कैसे एडिट होते हैं, इसको आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है। हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज वाला जो कॉलम है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी ये दो हमको नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। तो हम चाहें तो वर्ड में जाएं, फिर वहां से डिलीट करें, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ चीजें हम यहीं पे कर लेते हैं जो आसानी से हो सकती है इस तरह से। और वैलिड ऑप्शन जो है वो जनरली यहाँ पे करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये डिलीट होगा जरूर, पर ये जो टेबल है, रो है, थोड़ा सा इस एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। इसको कॉपी करेंगे, वर्ड में जाते हैं, ये करने का तरीका भी बता रहे कैसे। सीधे इसको आप एडिट करिए, डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये सब एक्टिवेट हो जाएगा। जिसको डिलीट करना है, इसमें कोई नंबर भी डिलीट करना है, कुछ भी जो आपको नहीं चाहिए वैल्यूज, वो आप ऐसा कर सकते हैं। तो दूसरी चीज, ये वापस जब अभी आपके सारे ऑप्शन क्लोज हो गए, इसको आप फिर से राइट क्लिक करें और फिर इसको आप वर्ड में जा, जैसे थीसिस बनती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वहां पर आप जा सकते हैं। ये आप यहाँ चलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद, यहाँ पे आपने ये टेबल कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद अभी भी देखिए, अगर इसमें मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दी तो ये वाला जो यहाँ पे वैलिड लिखा हुआ था, तो ये वैलिड लिखा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ फिर भी नहीं चाहिए, मतलब चाहिए ही नहीं। इसका टेबल का फॉर्मेट दूसरा करना है। इसको आप इंसर्ट करके राइट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, ये करना है। और फिर कंट्रोल X, यहाँ पे कंट्रोल V कर लीजिए। और ये वाला थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी वर्ड में जाके, कंट्रोल V। आप खुद भी कर सकते हैं, AI का यूज भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, इसके लिए फिर। और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम्स। अब ये जो प्लस वाला सेक्शन है, इस पे डबल राइट क्लिक करिए और इसमें कर दीजिए ऑटो फिट टू विंडो। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। और एडजस्टमेंट चाहते हैं, जैसा भी स्टेटमेंट, इसको और इस तरह से टेबल और एडजस्ट किया जा सकता है। इसका मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, फिर आप SPSS में आइए। SPSS में आने के बाद अभी तो आपका टेबल की एडिटिंग हुई, अभी आप चलते हैं इस पे ग्राफ पे। फर्स्ट ग्राफ है आपका, I prefer online shopping because it saves me time compared to visiting physical store। अगर आप यहाँ पे ही ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास सारे कलर ऑप्शंस है, कुछ आपने किया नहीं, उसने अपने आप से
8 कलर होते तो 8 सेक्शंस होते तो उसमें 8 कलर्स में वो ग्राफ बना देता है, 8 कलर्स में डिवाइड कर सकता है वो। अब क्या है, इसको भी आपको एडिट करना है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक टू एक्टिवेट। अभी आपको ये दिख रहा होगा, डबल क्लिक टू एक्टिवेट। ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो गया है। थोड़ा चार्ट ऊपर कर लेते हैं। इसको क्या करना है, अभी मैं जो भी एडिटिंग करना चाहती हूँ यहाँ कर सकती हूँ। इस पे शो डेटा लेबल्स मुझे चाहिए, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये शो डेटा लेबल्स में सभी चीजें शो करने लगा। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं चाहूँ कि मुझे ये स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा हुआ है वो या तो चाहिए ही नहीं, या फिर अगर मुझे सारी चीजें चाहिए ही तो या तो मैं डिलीट कर सकती हूँ, या मैं चाहूँ इसको तो मैं टेक्स्ट स्टाइल में जाकर मैं कैसा टेक्स्ट चाहती हूँ, टेक्स्ट अगर मैं चाहती हूँ टाइम्स न्यू रोमन में वो भी कर सकती हूँ, चाहूँ तो मैं ये पूरा डिलीट भी कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से एडिट हो जाता है। मतलब कि ये कहना ये है कि इसमें, अच्छा ये जब करने के बाद आप चाहें तो इसमें कोई कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर इसमें कलर ऑप्शन ये वाली एक विंडो की खुली हुई है, आप चाहो तो इसमें पिंक कलर करना चाहते हैं, कोई दूसरा कलर फिलअप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये ब्लू था पहले, अब पर्पल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करेंगे, आप सीधे क्लोज करेंगे, वापस आपके पास वो ग्राफ में पूरी एडिटिंग होकर आएगी। और एडिटिंग करने के बाद आप चाहें तो इस ग्राफ को फिर से यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर एक एक करके भी जा सकते हैं, और चाहे तो एक साथ भी पूरा कर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और फिर वहां पे वर्ड में जाके सारे काम करते रहिए। ये है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राफ में मुझे ऊपर कुछ नहीं चाहिए है, वर्ड में जाके वहां तो कर लिया, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी ये सब चीजें कर सकते हैं। एक बार देखते हैं इसको करके। ये जो ऑप्शन है इसको मैं टाइम्स न्यू रोमन में लिखना चाहती हूँ। टाइम्स न्यू रोमन ये जो भी है, ठीक है। ये सारा टाइम्स न्यू रोमन में हो गया है। और मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, ये मेरे ऊपर है। ठीक है, इसको क्लोज किया मैंने, ये सारी चीज अभी ये टाइम्स न्यू रोमन में हो गया। इसको वापस मैं कॉपी करके फिर मैं वर्ड फाइल में आती हूँ। वर्ड फाइल में आके मैं यहाँ पे फिर से एक बार कॉपी करके देखती हूँ। ये कॉपी हो गया, इस बार ये टाइम्स न्यू रोमन में आया है। अभी क्या है इसमें, अगर कभी ऐसा लगता है कि मैंने लिखा है, लिखने के बाद अभी कई बार होता है कि हम यहाँ पे सब करते हैं तो ये शीट है, आउटपुट शीट है, इसको हम सेव भी कर सकते हैं। लगता है कोई गलती नहीं है इसमें तो हम इसको सेव कर सकते हैं। फाइल पे जाके सेव एज आउटपुट विंडो, और आप चाहे तो इसमें नाम दे सकते, सेव कर दीजिए, बस ये है। अभी सेव करेंगे तो अभी हमारा डेटा एंट्री नहीं हो पाए, और भी चीजें समझानी नहीं हो पाएंगी। ये आउटपुट विंडो भी सेव हो सकती है। और बहुत बार ये होता है कि हम क्या करते जाते हैं काम, और उसको फिर डिलीट भी करते चले जाते हैं, कंट्रोल ए और डिलीट ऐसे भी कर सकते हैं। अब वर्ड फाइल में आते हैं वापस इधर। अब कभी कभी क्या होता है, ये बोल देते हैं कि जो भी आपके गाइड बोल देते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, ऊपर भी कुछ नहीं चाहिए, लेबल आप खुद करिए और इसका कुछ ऑप्शन दीजिए ग्राफ का। तो सबसे अच्छा इसमें आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं फॉर्मेट पिक्चर में आप जाइए। फॉर्मेट पिक्चर में जाने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे कुछ लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन और है, यहाँ पे पिक्चर टूल्स है जो वर्ड फाइल में, इस पे क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद आप ये क्रॉप पे जा सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आपके पास जो है ऑप्शन, आप यहाँ तक क्रॉप कर लीजिए, इधर क्रॉप कर लीजिए, और ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस तरह से आएगी इसकी विंडो, इसको भी आप क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। ये है कि अगर आप एक्सेल से जो आपकी ग्राफ बनते हैं तो एडिट हो जाते हैं, इससे जो ग्राफ है उसमें थोड़ा एडिटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। मतलब एक बार बन गए हैं तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते। आप आउटपुट विंडो भी अगर सेव करते हैं, आउटपुट वाली भी, तो उसमें भी आप नहीं कर पाएंगे। मतलब वो लाइव सिंक्रोनस होता है कि आपने जब काम कर रहे हैं तभी वो एडिट हो पाएगा। ओके, ठीक है। तो इस ये आपके सभी वो क्वेश्चन है, लिकर्ट स्केल के क्वेश्चन है। अभी मैं फिर से इसको डिलीट कर देती हूँ, कंट्रोल ए और फिर डिलीट। अभी फिर से चलते हैं एसपीएसएस में। यहाँ पे
तो ये सारे क्वेश्चंस का बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंसी और इसका जो ग्राफ है वो बन सकता है। आप चाहें तो इन्हीं क्वेश्चंस का आप डिस्क्रिप्टिव निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे एनालाइज करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एज या ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कन्वीनियंस के लिए लोग क्या बोलते हैं, ट्रस्ट के लिए लोग क्या बोलते हैं, तो इसके लिए मुझे हमेशा मीन निकालना पड़ेगा। एनालिसिस इस पर ही होगी। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मीन निकाला है एक्सेल के थ्रू, तो इस तरह से निकलेगा। जस्ट जैसे ही मीन वैल्यू है, मैंने यहाँ पे एक रो इंसर्ट करी और सारी जो वैल्यूज थी एक्सेल के थ्रू वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी है। अब क्या है आपके पास, एसपीएसएस में अगर आपको कैलकुलेट करना है इनका मीन, इन्हीं क्वेश्चंस का, कन्वीनियंस 1 कन्वीनियंस 2, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। इसमें अच्छा होगा पहले वेरिएबल व्यू में चले जाए, इससे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है। कन्वीनियंस पे ट्रांसफॉर्म पे जाए, सभी ऑप्शन है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। जो मेजरली हमको जरूरत पड़ती है उसकी बात कर रहे हैं। कंप्यूट वेरिएबल पे जाए, इसमें नहीं, कंप्यूट वेरिएबल पे, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जो सेक्शन है ना, नेम सेक्शन है, यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं, एसपीएसएस में एंट्री अलग है, एक्सेल की एंट्री अलग है। एक्सेल थोड़ा इजी है, पर एक्सेल में हम लेबलिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो एसपीएसएस में करना है। अभी मुझे कन्वीनियंस की चाहिए एंट्री, तो मैं कन्वीनियंस के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, कुछ CONV और अंडरस्कोर करके डैश, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्स्ट वाली रो के लिए लिखा हुआ है, फर्स्ट वाली, ये जो टारगेट वेरिएबल है वो फर्स्ट वाली रो जहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे वो अपने आप सेट हो जाता है। वो आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे इस विंडो पे काम करना है, बाकी चीजों की चिंता आपको छोड़ देनी है। अच्छा, दूसरा चीज फिर आप आए टाइप एंड लेबल पे। टाइप एंड लेबल पे आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से डिफाइन करना है, ये जो आपका ये वाला सेक्शन है, सॉरी, जब हम लेबल वाला सेक्शन होता है लेबल, वहां पर हम क्या लिखेंगे इसको, तो अभी लिख सकते हैं कि एटीट्यूड ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, या फिर इसको लिख सकते हैं मीन स्कोर, ऐसे लिख सकते हैं, मीन स्कोर ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, ऐसे करके इसको हम, न्यूमरिक में ही चल रहा है सब कुछ, और कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, अभी मुझे क्वेश्चंस वहां पे सर्च करने के, एक्चुअली क्वेश्चन मेरे पास कन्वीनियंस ही कौन से थे, तो कन्वीनियंस के क्वेश्चन मेरे पास अभी तो ये है कन्वीनियंस। इधर कन्वीनियंस तो मेरा टाइटल है, इसको मुझे यहाँ पे कैसे लेना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालना है, ऑल ऑप्शंस में गए, फिर जो ज्यादा जरूरत पड़ती है, एक्चुअली सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं। मीन पे जाते हैं, यहाँ नीचे वाले बॉक्स में आपको मीन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा एम से कैलकुलेट, इधर पे ये रहा मीन। मीन को आप डबल क्लिक करिए। अच्छा, अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क भी है, कॉमा भी लगा हुआ है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। मतलब हम स्टेटमेंट्स को वहां पर पहुंचाएंगे। पहले देखिए, इसमें क्लिक किया हमने, फिर ये ब्लू वाला एरो जो क्लिक हो गया है, ये 1 बाय 1 ही जाएगा, ये एक साथ नहीं जाते हैं। जैसे और विंडोज में हम पूरा डाउन एरो की के साथ उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करते तो सारे ऑप्शन वहां चले जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एक एक करके जाएंगे। आई प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, इस पे क्लिक कीजिए, फिर ब्लू एरो पे क्लिक कीजिए, फिर कॉमा आया। अब इसके बाद कॉमा खुद ही टाइप कर दीजिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप सेकेंड स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए, फिर आप जाइए ऊपर वाले ऑप्शन में, फिर कॉमा, ठीक है, फिर थर्ड पे क्लिक कीजिए, फिर एरो पे क्लिक कीजिए, फिर आया, फिर इसके बाद कॉमा अपने आप आया हुआ है, आप खुद टाइप कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको कॉमा की आगे जरूरत पड़ेगी। फिर प्रोडक्ट कंपैरिजन, इसको भी आप आगे ले जाइए, फिर कॉमा, चाहे तो कॉमा लगा हुआ है, चाहे तो आप आगे इसके आगे क्लिक कर लीजिए, फिर जाइए, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है द चेकआउट, फिर क्लिक कीजिए इसको। और ये क्वेश्चन मार्क अगर आप जब तक नहीं हटाएंगे तब तक ये आपकी ओके पेस्ट ये वाले ऑप्शन आपके एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क जो है इसको आप हटा दीजिए पहले। आपने जब क्वेश्चन मार्क को जैसे हटाएंगे तो ओके वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कि आपका डेटा, आपने डेटा एंट्री यहाँ पर सही की हुई है। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अभी आप यह देखिए, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, कंप्यूट कौन कौन से वेरिएबल है, कन्वीनियंस न्यू, उसमें उसने मीन कैलकुलेट किया हुआ है 5 वेरिएबल्स का अलग अलग 1 2 3 4 5, और कोई भी एनालिसिस अभी आउटपुट विंडो में नहीं आ रही है। अभी क्या है कि इसको आगे हमको क्या करना है, आप चलिए वापस से FDB सैंपल में,
अब क्या है कि जब हम कन्वीनियंस का यहाँ पर मीन स्कोर निकाल रहे थे तो हम अपने आप इंसर्ट कर देते थे एक वेरिएबल और उसमें ही सारी वैल्यूज पेस्ट कर देते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने एसपीएसएस से मीन निकाला हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो सबसे लास्ट में इस तरह से आता है। देखिए कन्वीनियंस अंडरस्कोर न्यू और जो लेबल है वहां पे लिखो मीन स्कोर ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो हमें करना था, जो हमने वहां पे ट्रांसफॉर्म वेरिएबल में जो हमने किया हुआ है और उसका रिजल्ट हमारे पास ये आया है। उसका जो मीन है कन्वीनियंस को इस तरह से निकला है। इसी तरह से हम और चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम वे, इन द सेम वे, पर कई बार होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आजकल ये बेस्ट सबसे लगता है कि उसको एक्सेल में ले जाकर उसका मीन निकाले और फिर भी हम देखते हैं एक बार कि उसने क्या कैलकुलेट किया हुआ है। तो 89 जो रो है इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नया है 4.80, ये देखिए, और दूसरा मतलब 4.80, 3.40। आप ये चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर देखिए ये वाली वैल्यूज और प्लस आपकी जो मीन स्कोर इसकी जो वैल्यूज है कन्वीनियंस की, कन्वीनियंस मीन स्कोर ऑफ कन्वीनियंस, ये देखिए ये वाली 4.80, 3.40, यही वैल्यूज हैं जो कि इधर भी आई। आप चाहो तो इसको कंट्रोल सी, ये एक्सेल वाली वैल्यूज है, आप यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, आपने पहले से कॉपीड है, और एसपीएसएस में जाकर वापस फिर हम लास्ट में जो वैल्यूज आई है इसकी कन्वीनियंस न्यू, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करें, ये वही एसपीएसएस वाली कैलकुलेट की हुई है वैल्यू। क्या ये सिमिलर है? ये एसपीएसएस वाली वैल्यू है, ये सिमिलर है 4.85, 3.4, मतलब कोई भी इसमें फर्क नहीं है। चीजों को कॉम्प्लिकेट करके आप नहीं देखे, आप चीजों को इजी करके देखिए, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए इस तरह से ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल में इसलिए इसकी ज्यादा जरूरत मुझे अब नहीं लगती। पहले जब नहीं पता था मुझे भी, तब मैं ये वाला ऑप्शन यूज करती थी। अभी सीधे से एक्सेल से आप इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा इजी होती है, एक्सेल से डेटा एनालिसिस भी हो जाता है, पर एसपीएसएस की शीट एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि हमको अभी सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे तो एसपीएसएस की एंट्री, एसपीएसएस की शीट्स हमको वहां पे चाहिए होंगी और वो खुद एनालाइज करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आप आर में कमांड्स दे सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज सब में वही आएंगी। एक्सेल से आप मीन कैलकुलेट करें, इससे करें तो भी वही आएंगी, और भी टेस्ट कुछ भी लगाए वो भी वैल्यू वही आएंगी, किसी भी सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर डजंट मैटर, सॉफ्टवेयर बस ये है कि कोई एक सॉफ्टवेयर आपको, बेसिक सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, बाकी वो अगर आता है तो बाकी चीजें आप रिसर्च मेथोलॉजी की भी समझ सकते हैं, समझनी आपके लिए थोड़ी इजी होंगी। इसमें इसके बाद अभी चलते हैं, फिर क्वेश्चनर पे चलते हैं। इसी मैम तरह से ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। जी मैम, जब भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो क्या उसमें ये मैटर करता है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम किए हैं? जैसे मुझे बेसिक एक्सेल अगर आता है तो जरूरी है कि मैं आर पर काम करूं या एक्सेल पर ही, एसपीएसएस पर ही करूं? वैल्यूज तो सब में सेम ही रहती है मैडम, लेकिन एक्चुअली कुछ स्कोपस, कुछ पेपर्स होते हैं जब अगर उसमें आर सॉफ्टवेयर से अगर एनालिसिस होती है तो ज्यादा प्रेफर करते हैं वो, थोड़ा सा रिसर्च सेक्शन भी और एनालिसिस भी अगर होता है तो ऐसे रिसर्च पेपर की एक्सेप्ट होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, पर एसपीएसएस में एंट्री अगर आती है आपको तो ज्यादा अच्छा है। पहले आप समझ लीजिए पूरा बेसिक, उसके बाद कमांड्स है, फिर डॉस प्रॉम्प्ट पे चलता है आर। एसपीएसएस में अगर एंट्री है तो रिजल्ट्स वही हैं। थीसिस आपको थोड़ा सा कुछ पेजेस उसमें चाहिए होते हैं, वरना लोग बहुत कम पेजेस की भी थीसिस बना देते हैं और पूरी कंप्लीट होती है। पर हमको एकेडमिक कुछ रिपोर्ट बनानी तो कुछ पेजेस उसमें होने चाहिए, थोड़े बड़े बड़े ग्राफ भी होने चाहिए, टेबल्स भी होनी चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए। इस वजह से एसपीएसएस अभी भी मुझे बेटर लगता है। आर भी है, पर आर से भी हो सकता है, आर से भी ग्राफ बनते हैं, वो सब चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। और इस तरह से ये सारे ये क्वेश्चंस है, ये मुझे लगता है अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ये कंस्ट्रक्ट है, ये वेरिएबल्स है, और इसकी एंट्री। दूसरी चीज फिर से एसपीएसएस में आते हैं एफडीपी सैंपल। अभी क्या है कि आप पूछ रहे थे, जैसे अभी तक तो ये सब चीजें हो गई। अब एक जो था, ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये बात ध्यान में देने की है कि ट्रस्ट है आपका, पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विसेज है, प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स है, या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फैक्टर्स है, सब चीजें डिपेंडेंट है। ये सब चीजें मतलब कि जो ये चीजें तो हैं कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फैक्टर्स है, बट ये सब चीजें, ये जो एटीट्यूड है, ये सारे स्टेटमेंट्स है, ये डिपेंड करते हैं रिस्पोंडेंट्स की एज पे, जेंडर पे, ऑक्यूपेशन पे, मंथली इनकम पे, मैरिटल स्टेटस पे।
मंथली इनकम पे डिपेंड करते हैं भाई किस तरह से वो शॉपिंग करता है। अगर उसकी बहुत ज्यादा इनकम है तो वो फालतू शॉपिंग भी कर सकता है जो हमको यूजलेस लगती है, पर कुछ लोगों को यूजफुल लगती होगी। हो सकता है कुछ दिनों बाद जो उसने कुछ खरीदा हो वही चीजें यूजलेस लगने लगे। पर अगर उसको उसके बजट पे मंथली मतलब उसका जो बजट है उसके लिविंग स्टैंडर्ड पे उस शॉपिंग से कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है तब तक ठीक है। अगर होता है मतलब कि कहीं ना कहीं इनकम अफेक्ट करती है। एज भी होता है कि बच्चे जो चीजें पसंद करते हैं वो हो सकता है 45 ईयर ओल्ड जो व्यक्ति है उसको ना पसंद आती हो। जेंडर वाइज भी जो बॉयज है उनका टेस्ट अलग होगा, जो गर्ल्स है उनका टेस्ट अलग होगा। ऑक्यूपेशन वाइज भी डॉक्टर्स का टेस्ट अलग हो सकता है, टीचर्स का अलग हो सकता है, पुलिस जो है उसमें कुछ अलग हो सकता है। सभी के साथ है, बिजनेसमैन है उनका टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे भी कि मैरिड है तब आपके पास दूसरे तरह के खर्चे हो सकते हैं जो घर गृहस्थी वाले होते हैं, और जब तक अनमैरिड है तब तक आपके थोड़े बहुत जो आपके टेस्ट है प्रेफरेंसेस है वो आपके सिंगल होने की वजह से दूसरे तरह के रहते हैं, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जो एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम और मैरिटल स्टेटस है ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है कि ये तो चेंज हो नहीं सकती, ये तो वैसी ही रहेंगी। इनके बेसिस पे आपका जो एटीट्यूड है इन सभी चीजों के लिए वो चेंज हो सकता है। अब जो एज वाइज है, देखिए एज वाइज भी मैंने एंट्री की हुई थी क्वेश्चंस में, हर एक रिस्पोंडेंट्स का रहेगा। देखिए इसमें पहले तो इधर चलते हैं, सॉरी इसको क्लोज करते हैं, इधर चलते हैं एज। तो ये जो है एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, मैरिटल स्टेटस, ये एक रिस्पोंडेंट्स का है पूरा यहाँ तक है। सेकंड जो रिस्पोंडेंट्स है उसका जो डेटा है वो सेकंड ये ऐसा चलेगा 2, 3, 4, ये सारे रिस्पोंडेंट्स का चल रहा है डेटा। जेंडर वाइज 1, 2 इस तरह से, मतलब 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल। ऑक्यूपेशन वाइज भी मैंने इस तरह से कोडिंग की हुई है। इस क्वेश्चनर में जरा चलते हैं एक बार सैंपल क्वेश्चनर में। लास्ट ये है कि विच एज ग्रुप डू यू बिलोंग टू, ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने कोडिंग की हुई है कि ये भाई 1 था, इसको कोड 1 किया, इसको 2 किया, एक तरह से। और बुलेट पॉइंट्स के साथ आप एंट्री करेंगे तो ना करिए, इसको पहले तो पूरा सेलेक्ट करके और जो आप इंसर्ट ये इस पे ही जाइए, बुलेट इधर पे जाके नन कर दीजिए, फिर एंट्री करेंगे तो आसान है। एंट्री करने के लिए एक क्वेश्चनर की कॉपी बना लीजिए पहले से, क्योंकि एक फाइनल क्वेश्चनर अलग रहने दीजिए और क्वेश्चनर को कॉपी पेस्ट ही करना है तो बारी बारी से पेस्ट होगा एस केसेस में। तो बुलेट पॉइंट्स जितने हैं उसको आप पहले हटा दीजिए, कुछ नहीं करना है। बुलेट पॉइंट जैसे इसमें यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, अपने आप ऊपर ये जो टास्क बार में आप देख रहे होंगे ऊपर यहाँ पे, इस पे क्लिक कीजिए छोटे वाले एरो पे और नन कर दीजिए, बस। सभी के साथ ऐसे कर सकते हैं। अभी इसको अंडू करते हैं, तो बताने के लिए था फिलहाल। अब आप आए एसपीएसएस में, इसी तरह से मेल के लिए 1 कोडिंग है, फीमेल के लिए 2 कोडिंग, इस तरह से सबको कोडिंग दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, साइन किए हुए हैं, और उस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सारी एंट्रीज की हुई 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अब क्या करना है कि अगर एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम इन सबको भी हम चाहें तो देख सकते हैं एक बार फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं सबकी। और अभी ये सारे क्वेश्चंस उसमें पहले से पड़े हुए हैं, जब तक आप इनको हटाएंगे नहीं वो अपने आप नहीं हटेंगे, इसको हम रीसेट कर देते हैं। रीसेट ऑप्शन में जाते हैं तो अपने आप हो जाते हैं, नहीं तो फिर 1 बाय 1 आप यहाँ लाएं, फिर उसको एक एक स्टेटमेंट क्लिक करिए, फिर एरो पे क्लिक करिए, फिर इस बॉक्स में ले जाइए। इससे अच्छा है जब आपको किसी भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है तो आप रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर डाउन एरो की से आप नीचे आइए, डाउन सॉरी स्क्रॉल करिए, नीचे तक आइए, फिर एज। अभी आप क्या करिए, शिफ्ट लीजिए, शिफ्ट बटन प्रेस करिए और डाउन एरो की उसको सबको सेलेक्ट कर लीजिए, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, मैरिटल स्टेटस, और इसको क्लिक, जो एरो है इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ आप पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, कुछ नहीं कर रहे हैं आप तब भी ये फ्रीक्वेंसी निकाल देगा। देखिए बहुत चीज ओके किया आपने, ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दे देगा। विमेंस कितनी थी, मेंस कितने थे, ऑक्यूपेशन वाइज कितने लोग थे, सब चीजें इसमें बता दे रहा है। टेबल्स भी आप चाहें तो वही डबल क्लिक करिए, इसको एडिट कर दीजिए, वैलिड परसेंट और क्यूमुलेटिव परसेंट यहाँ से ही हटा दीजिए। फिर इस टेबल्स को आप वर्ड में भी कॉपी कर सकते हैं। ये सब चीजें तो है ही जो पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं ग्राफ से तो इसमें फिर से आइए डिस्क्रिप्ट। अच्छा, एक चीज और, अगर हम चाहते हैं चार्ट्स चाहते हैं तो चार्ट में हम करते हैं इसको, तो हम पाई चार्ट ही चाहिए, कंटिन्यू करते हैं और ओके। अभी पहले आपके फ्रीक्वेंसी टेबल पहले निकले हुए थे सारे,
अभी आपने ग्राफ पे क्लिक किया है तो फिर से ये फ्रीक्वेंसी टेबल दे रहा है, उसके लिए मैं बता रही हूँ ऑप्शन वाला। तो क्या करते हैं इसमें कि मुझे सिर्फ ग्राफ चाहिए थे, फालतू में इतना सारा उसने करके दिया है, तो क्या करते हैं, पांच को डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए और डिलीट। कम्युनिस्ट स्पीकिंग, ये अविनाश मुंडे, प्लीज म्यूट योर माइक। अभी फिर से आप एनालाइज पे जाए, एनालाइज पे जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव, मतलब जो ऑप्शन आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ डिस्क्रिप्टिव पे, फिर जाइए आप फ्रीक्वेंसीज पे। इस बार क्या करिए, आपको सिर्फ ग्राफ चाहिए। ग्राफ में आपने क्या किया हुआ है, चार्ट्स में जाके देखिए सब क्लिक है, सारे ऑप्शंस क्लिक है, आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है। और ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स, इसको हमको अनचेक करना है। जब हम इसको अनचेक करेंगे और फिर ओके करेंगे, इस बार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ही आएगा। ग्राफ को मैं एडिट कर सकती हूँ, मैंने आपको पहले बताया हुआ कि आप इसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। आई होप कि आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे आज की सेशन से। और अभी फिर से कंट्रोल ए करके फिर से हम डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पूछ लो। और अगर आपको कोई भी आंसर, कुछ क्वेरीज हो तो भी आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके पास, तो कुछ क्वेश्चन है अगर आपके पास। एक अभी आपको एनोवा, टी टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट ये सब बताने के लिए शायद नेक्स्ट जो सेशन है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, उसमें बताया जाए। तो इसमें कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करते हैं। एक ऑप्शन है कन्वीनियंस के ऊपर, एक मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। कंपेयर मींस में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और वन वे एनोवा। वन वे एनोवा में हम सबसे पहले नीचे जाते हैं, इस मीन स्कोर जो हमने निकाला था कन्वीनियंस का, उसको हम डिपेंडेंट लिस्ट में रखते हैं। और एज वाइज हम जाते हैं, एज जो है उसको फैक्टर ऑप्शन में रखते हैं, इसको क्लिक करते हैं। और इसमें ऑप्शंस में जाकर डिस्क्रिप्टिव पे अगर चाहे तो क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। अभी ओके किया, ओके करने के बाद हमारे पास इस तरह का टेबल आया। ये एनोवा टेस्टिंग है। एनोवा कब लगता है, जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो कैटेगरीज है 2 से ज्यादा होती है। और अगर हमारे पास 2 ही कैटेगरीज है, लाइक जेंडर, कंपेयर मींस में जेंडर में आते हैं, और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा चीजें हमको। मीन स्कोर हम इसमें जाते हैं ऊपर। और ग्रुपिंग वेरिएबल जो है इसको हमको चाहिए जेंडर। जेंडर को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। डिफाइन ग्रुप्स में आकर हम ग्रुप 1 में क्लिक करें 1 और ग्रुप 2 में क्लिक करें 2। इसके बाद कंटिन्यू पे आए और ओके कर दें, तो हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो जो आपका जो एनोवा है वो ज्यादा कैटेगरी होती है, जो 2 से ज्यादा, तो एनोवा यूज होता है। और जब टी टेस्ट है उसमें जो वैल्यूज है वो इंडिपेंडेंट सैंपल, जहाँ पे जेंडर 2 ही कैटेगरी से, विमेंस और मेंस, और जनरली उनको हम उनके जो रिस्पॉन्सेज है कंबाइन नहीं कर सकते हैं। विमेंस का टेस्ट प्रेफरेंस अलग होगा, मेंस का अलग होगा। और ये वैल्यू देखी जाती 0.043, दैट शुड बी लेस देन 0.05। ये अगर आपको हो सकता है अगले नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाए। एंड आई होप आपको कुछ इंसाइट इसमें से मिला होगा। Thank you so much, ma'am. It was a wonderful session. थैंक यू सो मच। Thank you, Deepa ma'am. It was a very engaging session and we highly appreciate. And ऐसे लग रहा था कि अभी चलता रहे, लेकिन वक्त हमारे हाथ में नहीं है। मैंने भी आज आपसे बहुत कुछ सीखा और जरूर पार्टिसिपेंट्स ने भी सीखा होगा। और हमें फिर मौका मिलेगा तो दीपा मैम फिर से आपको इसी एस्पेक्ट्स पे और फर्दर एनलाइटन करेंगे। हमारे पास वक्त कितना ही है, अब 4 बजने को है और 1-2 मिनट का समय मेरे ख्याल से और है, तो कोई एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं। अदरवाइज हमको एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए भी समय चाहिए, तो उस 1-2 मिनट का टाइम ग्रुप फोटोग्राफ के लिए लेते हैं। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो वी कैन हैव ए ग्रुप फोटोग्राफ। सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसका रिकॉर्डिंग हमारे साथ शेयर कर सकें। पॉसिबल होगा तो हम शेयर करेंगे डेफिनेटली। आप इस सेशन का बोल रही हैं कि सभी सेशन का बोल रही हैं? सर स्पेशली दिस सेशन सर। हाँ, कर देंगे हम। यदि वो व्हाट्सएप में या ईमेल पे शेयर हो सकता होगा तो विल डू इट। थैंक यू सर।
Okay. So I request once again to everyone to switch on your camera so that we can have a group photograph of this session. Dr. Isha, I hope admin is ready for the group photograph. Yes, sir. We are ready. Okay. So please do it as soon as you find that majority has switched on their cameras, and we can have group photograph. Yes, sir. Please tell us when it is done. It's done, sir. Okay, thank you very much. Thank you. And I think you can check whether Mandeep Kaur madam has joined or not. She has joined. Okay, thank you again to Deepa ma'am. And I think we're having maybe 1 or 2 minutes time at 4:04.